One of the most destructive, unprecedented, disastrous war of the world, the First World War. It begins from 1914 and it ends by 1918. This war and these types of conditions were never seen before by any country in the world. We are talking about First World War. A very good morning to all my dear students. This is chapter first of History, ICSE class 10th semester 2 examination. We will be studying in this chapter about the causes of the First World War, and later on we will study about the immediate cause and the result. Only these two topics are going to come for your examination, ICSE class 10th examination semester 2. So let's start. First World War was fought on a worldwide scale. Almost all countries of the world are involved in the First World War. Almost 20 million people died in this war, including army people, soldiers, and normal civilians. About 20 million people died during this war. It has affected almost every country of the world, whether the country is a small country or it is a big country or a huge powerful country. All countries of the world are affected by this war. New methods of defense and destructions were used. Methods which were never used before, methods of the defense and destruction which have been never used before, such type of new methods were introduced in this war, which was so destructive that it has affected almost all part of the world. Because of unprecedented extent of its spread, impact and damage, this war is known as the First World War. Because of unprecedented, what do you mean by unprecedented? Unprecedented means which has never been seen before by in the history. So unprecedented extent, ठीक है, never it was any war which has not been extended so much. उसका स्प्रेड कभी इतना वाइड नहीं रहा है, कभी उसका इम्पैक्ट इतना वाइड नहीं था. ठीक है, द वॉर हैज नेवर कॉज्ड सच अ बिग डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी which has been done by this world war. That is why it is known as the First World War. Now the causes of the First World War. There are several causes which has led to this world war. First is nationalism. We must have been filling the forms where the nationality of a person is asked. Okay, basically what we write our nationality, that is Indian. In the same way, nationalism is related to the unity of the people who are living in a particular country. So nationalism refer to the sense of unity felt by the people who who are united. They are the people who are united, who are living in a particular country. Those people who shared a common history. ठीक है, those ऐसे people जिनकी एक common history होती है, जो एक common language बोलते हैं and जो एक common particular culture follow करते हैं. Though India is a diverse country which has several religions, they spoke several language, but when it comes to the country, the spirit and the idea of a country, whole country come together and unite. ठीक है, example, if we take example, we can take example of a cricket. जब cricket की बात आती है तो चाहे वो इंडिया में किसी भी religion का इंसान रह रहा होता है, it we all unite together and wanted to our country to win the matches. So nationalism refers to the sense of unity felt by the people who share common history, language and culture. But this sense of unity turned into extreme pride that had made many countries believe that their country is superior to other. But during the World War, during the First World War, यही जो सेंस ऑफ यूनिटी थी लोगों में, इसी नेशनलिज्म ने उनके अंदर एक प्राइड, एक एक्सट्रीम प्राइड लेके आ गया, जिसने कि दैट हैज मेड
country believe that their country is superior, तब उनको ये लगने लगा कि only their country is superior, खाली उन्हीं की country क्या है, superior है, better than others है, ठीक है, and दूसरों की country is not as superior to their country, ठीक है। ये एक cause बना वर्ल्ड वॉर का, जो कि दो कंट्री के बीच में क्लैशेस लेके आ गया। It led to the development of aggressive nationalism. अब जब यही nationalism, जब this nationalism has turned them that into a extreme pride, it has given the rise to the aggressive nationalism. अब aggressive, जो word aggressive है, यही negative होता है, ठीक है, aggression। सो एग्रेसिव लोग बहुत एग्रेसिवली अपनी नेशनैलिटी को निभाने लगे, दैट ओनली देयर कंट्री सुपीरियर एंड नन अदर कंट्रीज एज सुपीरियर टू एज देयर कंट्री। सो व्हाट इज एग्रेसिव नेशनलिज्म? दिस मीन्स लव फॉर ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर कंट्री, ठीक है। दिस मीन्स लव फॉर ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के लिए तो दे आर हैविंग अ लव एंड अफेक्शन, but they hated the people of other country, ठीक है, hatred for other country. For example, France wanted to get back its provinces of Alsace and Lorraine from Germany. Germany के अंडर कुछ provinces फ्रांस की थी। फ्रांस चाहता था कि वो people जो कि हमारी कंट्री के बिलोंग करते हैं, वो हमारी टेरिटरी में वापस आ जाएं। सेम इटली ऑल्सो वांटेड, इटली का पार्ट ऑस्ट्रिया के पास में था, टेरेंटिनो टेरेस्टी, ठीक है। ये दोनों जो पार्ट थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के अंडर, बट थे ये इटली के। अब इटली को भी क्या चाहिए था, इटली ऑल्सो वांटेड these part back because they wanted their people to be united together and form a strong nation. These countries develop expansionist policy. अब इन countries ने क्या develop किया, एक expansionist policy develop की, means कि दूसरे parts को भी जो ऐसे provinces हैं जो दूसरी countries ने उन लोग से ले ली हैं, उन पार्ट्स को वापस से अपने पार्ट में मिलाना, एंड दे वांटेड टू एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों चाहिए था, ताकि यूनाइट होके वो मिलिट्री पावर को अपनी इंक्रीज कर सके, सो दैट दे कैन बिकम अ मोर पावरफुल नेशन। Okay, so these countries developed expansionist policies and started increasing their military power, और धीरे धीरे अपनी military power उन्होंने increase करना start कर दी। Now the second cause was imperialism, ठीक है। ये भी एक originate हुआ है from the nationalism, which is what is the meaning of imperialism? It refer to the state policy, ये एक state की policy होती है, और practice, या तो ये policy है या तो एक practice है। किसकी practice है? Which a powerful nation established, ये पावरफुल नेशन ने स्टैब्लिश किया है इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्री, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि एग्रेसिव नेशनलिज्म हैज गिवन राइट टू बर्थ टू द एक्सपेंशन पॉलिसी। अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे, दो ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पावरफुल नेशन एक्सपेंशन कैसे करेगा, एक्सपेंशन करेगा या तो डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन मींस विद द सिचुएशन ऑफ अ वॉर, ठीक है, वॉर की सिचुएशन ले आए अगर वो, ठीक है, वॉर की सिचुएशन अगर वो ले आता है, ठीक है, तब उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट एक्विजिशन हो जाएगी, ठीक, डायरेक्टली वो उसने वॉर किया और उस पार्ट को एक्वायर कर लिया। सेकेंड जो वे है वो है गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, या तो किसी कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा तो भी वो कंट्री उसकी हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया पे ब्रिटेन ने डायरेक्टली वॉर नहीं किया था, डायरेक्ट उसकी टेरिटरी एक्वायर नहीं करी थी, बट थ्रू गेनिंग इंडिया में आए, उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल को ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया, एंड सून दे वर एबल टू कंट्रोल ऑल ओवर India. So this is what the imperialism means, where the powerful nation establish its control over the other country by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control. Second is, once the country is acquired, it was claimed as colony. एक बार जब country acquire कर ली जाती है, जब कोई part या provinces acquire कर ली जाती है, उसको ये powerful nation नाम देते हैं किसका, कॉलोनी का, ठीक है।
अब इन कॉलोनी को गवर्न कौन करता है? These colonies were governed by imperial nations. ठीक है, imperial nations means these only, the powerful nations. यही इनको गवर्न करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ये भेजते हैं, एंड इन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ये पूरी कॉलोनीज होती है. ठीक है, ऑल द कॉलोनीज. नेक्स्ट इज दीज कॉलोनीज, क्यों ये, अच्छा ये कैप्चर क्यों करते हैं इन कॉलोनीज को? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट दीज कॉलोनीज. ओके, in the form of they provide raw material. ठीक है, from these colonies cheaper labor इनको मिल जाता है, agricultural land मिल जाती है, ट्रेड के लिए पोर्ट मिल जाते हैं. ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है. और पोर्ट क्या होता है? एरिया नियर द सी फ्रॉम वेयर शिप्स आर बीन transported from one place to another. By the end of 19th century, France and England had built huge colonies. ठीक है, अब ये एक्सपेंशन करते करते जो दो बहुत पावरफुल कंट्रीज थी ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन सी? फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन्होंने क्या कर लिया? एक लार्ज, एक ह्यूज कॉलोनीज अपनी बिल्ड कर ली, अपने एरियाज को एक्सपैंड कर लिया. So by the end of 19th century, France and England was able to build his large colonies, huge colonies. Some other countries like Germany, Italy, Russia, Japan also wanted to increase their territories. और इन्हीं फ्रांस और इंग्लैंड को देखते देखते जर्मनी, इटली, रशिया, जापान ये भी चाहने लगे कि इनकी भी कॉलोनीज, इनकी भी टेरिटरीज इंक्रीज हो सके, ये भी अपने एरियाज को एक्सपैंड कर सके और लार्ज मिलिट्री पावर्स को बिल्ड कर सके. ठीक है, सो नेशनलिज्म इज love for own country, hatred for other countries. ठीक है, aggressive nationalism is the result of nationalism. And what is imperialism? Imperialism is a policy of a state where powerful nation establish its control over the other country either by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control. Thus, aggressive nationalism and economic competition led to fear, hatred and international tension. अब यही aggressive nationalism और economic competition बढ़ गया. ठीक है, competition कैसे बढ़ गया भाई? अब मेरी country powerful है, ठीक है, मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनको देख के दूसरी कंट्री भी पावरफुल बनने की कोशिश करने लगी. सो देयर ये सारी सिचुएशन जब क्रिएट हो गई, सो इट हैज लेड टू द सिचुएशन ऑफ अ फियर, ठीक है, हेट्रेड एंड इंटरनेशनल टेंशन. ये तीनों चीजें पूरे इंटरनेशनली क्रिएट हो गई, विच हैज लेड टू द राइज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द थर्ड important cause was race of armaments. Now, what is armaments? Armaments are the destructive material which are used during the war. ठीक है, guns, ठीक है, tanks, and many more things. One of the main reason of the First World War was a race of armaments. ठीक है, ये जो रेस स्टार्ट हो गई आर्मामेंट्स की, कि जितनी भी पावरफुल नेशन थे वो चाहते थे कि उनके जो भी आर्मामेंट्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, यूनिक होने चाहिए, बेटर देन अदर कंट्रीज. तो ये सब पावरफुल नेशंस के बीच में रेस स्टार्ट हो गई. इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एवरी मेजर पावर कंट्री बिगन टू स्टॉक पाइलिंग आर्मामेंट्स. अब ये जो इन्होंने क्या किया, जितनी भी पावरफुल नेशंस थे, in the name of self defense, that they are saying that we are stockpiling the armament because we wanted to self defense us. ठीक है, in the name of self defense के नाम पे ये जो मेजर पावरफुल कंट्रीज थी, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? आर्म्स आर्मामेंट्स की स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट कर दी. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक पाइलिंग? अरेंजिंग. ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो अपने आर्म्स को उन्होंने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. By 1914, Germany had left Britain and France in the production of iron and steel. अब इस रेस में जर्मनी was the first. ठीक है, 1914 में जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया. किसकी प्रोडक्शन में?
आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन। भैया आर्म्स बनते किससे हैं? आयरन और स्टील से ही तो बनेंगे। बंदूक और गन्स वगैरह सब किससे बनेंगे? आयरन और स्टील से। तो जर्मनी केम फर्स्ट इन दिस रेस। its ship Imperator built in 1912 was the largest। ठीक है, अब ये जो इम्परेटर बनी थी उनकी शिप, उन्होंने जर्मनी ने इम्परेटर शिप बनाई थी। कब बनाई थी? 1912 में बनाई थी। इट वाज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप के नाम से आज भी जानी जाती है। ओके, जब अब इन्होंने एक कीन कैनाल बनाया था जिससे इनके बैटल शिप्स जो थे वो कहाँ जा सकते थे? अंडर द वाटर एंड दे कैन एंटर इनटू द वाटर। ठीक है, कीन कैनाल से। ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज कंसर्न्ड विद ग्रोइंग जर्मनीज ग्रोइंग स्ट्रेंथ। अब ये जो जर्मनी की ग्रो हो रही थी स्ट्रेंथ, जर्मनी पावरफुल नेशन बनता जा रहा था। ठीक है, इससे कौन परेशान हो गया? इससे ब्रिटेन और फ्रांस बहुत परेशान हो गया कि भाई अब ये इतना पावरफुल होगा कि कहीं वॉर की सिचुएशन ना आ जाए हमारे साथ। नाउ द फोर्थ वाज डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। अब धीरे धीरे यूरोप का डिवीजन स्टार्ट हो गया। डिवीजन मतलब दो पार्ट में यूरोप ने डिवाइड हो गया। एक था जो कि फर्स्ट जो था दैट वाज देयर वाज अ टू काइंड ऑफ स्टेट्स इन यूरोप इन द 20th सेंचुरी। ऑन द वन हैंड वो एक सिंगल नेशन स्टेट था। सिंगल नेशन स्टेट क्या होता है? जहां पे दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे हमारी इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर होता है। ठीक है, बट सिंगल नेशन में दे स्पीक ओनली वन सिंगल लैंग्वेज। ओके, देयर इज नो मिक्सचर ऑफ एनी अदर रिलीजन एंड थिंग्स। सो सिंगल नेशन में कौन कौन था? फ्रांस था, हॉलैंड था एंड जर्मनी था। और दूसरे हैंड पे इंपीरियल स्टेट्स थे। उसमें कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी था एंड रशियन एम्पायर था। ठीक है, Germany entered alliance with Austria Hungary and later Italy also joined। and ये क्या बन गए? दो ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप जो था वो था ट्रिपल अलायंस का। कौन कौन था उसमें? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। दो इटली का कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया के अंडर पहले से ही था, बट तब भी इटली ने किसको ज्वाइन किया? ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया। लेटर ऑन इटली ने अपना दल बदल दिया था। ठीक है, बट अभी उन्होंने ट्रिपल अलायंस में ज्वाइन किया था। और दूसरे पार्ट पे जो दूसरा ग्रुप था वो था ट्रिपल एंटाइन का। ठीक है, एंटेंटाइन का। अब इस ग्रुप में कौन कौन था? इसमें था फ्रांस, रशिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और ब्रिटेन। ठीक है, दोनों में से किसी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फ्रांस, रशिया एंड इंग्लैंड फॉर्म ट्रिपल एंटिटी एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी which is currently today it is currently known as Australia and Hungary, two separate nations। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड इटली joined triple alliance। These two groups of Europe were formed। Rivalries between nations due to colonies, trade and trade route led rise to the rivalries which finally result into First World War। अब यही rivalries जो इन दोनों ग्रुप्स में आ गई थी। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? ट्रेड रूट में भी राइवलरीज आ गई थी। कॉलोनीज भी, अब इनको भी कॉलोनीज चाहिए थी, इनको भी चाहिए थी। ठीक है, ट्रेड वही ट्रेड ये भी करते थे, वही ट्रेड ये भी करते थे, दोनों को ही वही सेम रूट चाहिए था। सो ये सब दिस हैज ऑल लेड टू द राइवलरीज। ठीक है, बहुत सारे राइवलरीज मीन्स बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी। ठीक है, विच हैज रिजल्ट इन द राइज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। These are the four basic causes of First World War. In the second part, we will learn about the immediate cause, which was Sarajevo crisis. Thank you, class, for attending this session. And in the next class, we will study about Sarajevo crisis.